بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زی ایم سی پولیٹیکل اپڈیٹ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ زاہد جعفر۔ ناظرین، اب یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ صحافت کسی بھی ملک میں اس کی ترقی کے لیے، اس کی فلاح و بہبود کے لیے چوتھے ستون کے طور پر جانا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ پوری دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں نظر دوڑائیں تو آپ کو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ملے گی کہ وہاں پہ صحافت ذمہ داری کے ساتھ کی جاتی ہے۔ یعنی صحافت کسی مادر پدر آزادی کا نام نہیں ہے ان تمام ترقی پذیر ممالک میں۔ وہاں پہ جو سٹوری بریک کی جاتی ہے، جو خبر دی جاتی ہے، اس کو جب تک جرنلزم کے مسلمہ کسوٹی کے اوپر پرکھا نہ جائے اس کو بریک نہیں کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان ترقی یافتہ ممالک میں جرنلزم اور جرنلسٹ دونوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن ہم بڑی بدقسمتی سے ہے، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو تھوڑا تکلیف بھی ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر جرنلزم جو ہے وہ رسپانسبلٹی کے بغیر کیا جا رہا ہے، اور ہمارے محترم مکرم جرنلسٹ دوست اور بھائی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پردہ سکرین پر بیٹھ کر، ٹی وی چینلز کی سکرین کے پر بیٹھ کر ان کو یہ اختیار مل گیا ہے کہ وہ بغیر کسی تحقیق کے وہ دوسروں کی پگڑیاں اچھالتے رہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں آج میری گفتگو کا موضوع رہے گا کہ جرنلزم ود رسپانسبلٹی یہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو جیسا آپ کو پتا ہے کہ اس پروگرام کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پچھلے دنوں کچھ واقعات ایسے رونما ہوئے جس کی وجہ سے ہمارے جرنلسٹ دوستوں نے بھی پیالی میں طوفان اٹھانے کی کوشش کی، اور ہمارے جو بڑے بڑے میڈیا ہاؤس ہیں انہوں نے بھی اس اننیسیسری ایونٹ کو وہ رانگ سائڈ پر کھڑے نظر آئے۔ آپ سب کو پتا ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت نے پہلی دفعہ یہ انیشیٹو لیا کہ جناب وہ وزراء جو کارکردگی بہتر دکھائیں گے ان کو ریوارڈ دیا جائے گا، اور ان کو تعریفی اسناد جو ہیں وہ دی جائیں گی۔ As an analyst, I personally think that this is a very good initiative. اب ہم جب اپنا، آپ لوگ مجھے جانتے ہیں کہ بائی پروفیشن آم لائر، ہم اپنے جو امپلائی ہوتے ہیں ان کے لیے ٹاسک مقرر کرتے ہیں کہ جناب جو امپلائی جو ہے وہ اپنے ٹاسک کو پورا کرے گا اس کو یہ بونس دیا جائے گا، یہ انسینٹیو دیا جائے گا۔ یہ تمام بڑے جو بزنسز ہوتے ہیں ان کا یہ ایک ماڈل ہے کہ جو اچھا کام کرے اس کو اس کا ریوارڈ دیا جائے تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس سے موٹیویٹ ہوں اور بہتر سے بہتر کام جو ہے وہ ہو سکے۔ اس میں
जब अनाउंसमेंट हुई तो उसमें हमारे वजीर मवासलात जनाब मुराद सईद साहब जो है, उनको जो है उनकी वजारत को, यानी उनको नहीं, उनकी वजारत को जो है वो टॉप 10 में पहली पोजीशन दी गई कि वजारत मवासलात और उनके नीचे जो भी पाकिस्तानी पोस्ट और दूसरा, उन्होंने बेहतरीन काम जो है वो किया। इसके ऊपर हमारे कुछ जो अपने आप को बड़ा सीनियर सहाफी कहते हैं, उन्होंने टीवी चैनल्स पर बैठकर इंतहाई घटिया और लोग गुफ्तगू की मुराद सईद के हवाले से, और उसको लबादा पहनाने की कोशिश की गई कि ये जनाब हम तो सहाफत कर रहे हैं। अब मोहसिन बेग जो अपने आप को सहाफी कहते हैं, ठीक है, होंगे, इससे हमें कोई इसके ऊपर बहस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोहसिन बेग को किसने ये इख्तियार दे दिया कि वो बगैर तहकीक के लफ्ज और घटिया गुफ्तगू करे किसी भी। मुराद सईद तो चले एक फेडरल मिनिस्टर है, हम ये समझते हैं कि ये अगर एक आम शहरी भी होता तो जर्नलिज्म के जो मुसलमा कवायद हैं वो मोहसिन बेग को ये हक हरगिज अदा नहीं देते कि जनाब वो पगड़ियां उछाले लोगों की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये क्योंकि रवाज बन चुका है कि हम लोग जो है वो जनाब, वो क्या बात है, कोई हमें पूछने वाला नहीं है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि हाँ हम क्योंकि जर्नलिस्ट हैं और हम हमारे पास क्योंकि एक लोगो आ गया है, माइक आ गया है, हम स्क्रीन के सामने बैठते हैं, लोग हमें देखते हैं, लोग हमें सुनते हैं, तो हम जो मर्जी कहते रहे। ऐसा नहीं है जनाब। और आज, यानी खबर तो 2 दिन पहले की है, लेकिन आज क्योंकि प्रेसिडेंट साहब ने वो ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, यानी प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के अंदर जो तरमीम की गई हैं वो अब लागू हो गई हैं। इसके ऊपर भी अभी से जनाब शोर मचना शुरू हो गया है। जो सहाफती तंजीमें हैं वो भी इसके ऊपर बात कर रही हैं कि जनाब ये आजादी सहाफत के ऊपर कदगन लगाने के मुतरादिफ। मैं बड़े ईमानदारी से, बड़े वसूख से यहां यूके में बैठा हुआ कि जितनी आजादी बोलने की, लिखने की पाकिस्तान मीडिया को है उतनी कहीं पे भी नहीं है। मैं कहता हूं कि जो कुछ ये वहां करते हैं हमारे जर्नलिस्ट भाई, यूके में आके करें ऐसा, ऐसी स्टेटमेंट दें, ऐसी स्टोरी चलाएं, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में कोई भी मीडिया हाउस जो है वो नाकाम कर सके। आपने देखा नहीं है यहां क्या हुआ? रेहाम खान को माफी मांगनी पड़ी जुल्फी पहाड़ी से, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करनी पड़ी, और फिर बड़े बड़े माफीनामे जो हैं वो छापे गए, क्योंकि रेहाम खान यहां यूके में थी, यूके कोई कोर्ट के अंदर जुल्फी बुहारी जो है वो गया। क्या मेरे ये सहाफी भाई भूल जाते हैं कि यहाँ बड़े बड़े मीडिया हाउस जो है, बड़े बड़े चैनल्स जो हैं, उनको इतने हैवी फाइन्स हुए कि उनको अपने जो उनके प्रोसेस थे, उनके जो आप यहाँ पे सर्कल्स थे, उनको रोकना पड़ा, और फिर बड़े बड़े माफीनामे भी चलाने पड़े, इसलिए कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। यहां पे आप नहीं बात कर सकते गलत। इसके ऊपर अगर मेरा कोई जर्नलिस्ट दोस्त मुझसे इस बारे में कोई करना चाहे मुकालमा, तो जनाब मैं हाजिर हूं कि जिस तरह की
आजादी पाकिस्तान के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉनिक और पेपर मीडिया को मौजूद है, उतनी और कहीं मौजूद नहीं है। अब यानी जो मैंने अभी बात की, प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के अंदर जो है वो तरमीम की गई। अब इन तरमीम को लेके जो शोर मचाया जा रहा है, वो जो सहाफत के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उनके अगेंस्ट है। क्यों? अब कोई मेरा सहाफी भाई मुझे सिर्फ ये बता दे कि जर्नलिज्म के कौन से मुसलमान असूलों के मुताबिक आप फेक न्यूज के ऊपर बड़े बड़े प्रोग्राम कर सकते। देखिए, मैं एक तालिब इल्म हूं जर्नलिज्म के रास्ते में, तो मैं हो सकता है आप लोगों से सीख जाऊं, लेकिन आप मुझे समझा दें कि एक फेक न्यूज के ऊपर किस तरीके से आप बड़े बड़े प्रोग्राम कर जाते हैं, और वहां उन्हीं फेक न्यूज के ऊपर जो है वो आप जो है समझते हैं कि जनाब किसी की मर्जी, किसी की प्राइवेट लाइफ में आप घुस जाएं और वहां पे जो बात करें। अब अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, जो कुछ आपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उसकी बेगम बुशरा बीबी के हवाले से जो खबरें चलाई, किसी ने उनकी तलाक करवा दी, किसी ने उनको अलहदगा करा दिया। मैं कहता हूं इमरान खान अगर प्राइम मिनिस्टर ना भी हो, आप यूके के अंदर, मेरे एक आम शहरी के बारे में यूके के अंदर है कि आप इस तरह की कोई स्टोरी चलाएं ना फेक, तो फिर आपको पता चले कि जर्नलिज्म होता क्या। और फिर भी हम समझते हैं। अब फेक न्यूज को रोकना हर जो हुकूमत है उसकी जिम्मेदारी है। ये किसी किस्म का आजादी राय के ऊपर कदगन नहीं है। जहां मेरी नाक की नोक शुरू हो जाती है वहां पे आपकी आजादी खत्म हो जाती है। जर्नलिज्म का भी कोई तो मयार तो होना चाहिए ना। उसके ऊपर किसी दिन अलग से गुफ्तगू करूंगा कि हमारे यहाँ खास तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो है वो जर्नलिज्म का स्टैंडर्ड क्या है, उसके ऊपर फिर कभी बात करूंगा। लेकिन अभी ये प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जो है उसके अंदर जो तरमीम की गई कि जनाब फेक न्यूज अगर आप देंगे तो दो तीन चीजें जो इस तरमीमी ऑर्डिनेंस के अंदर है। पहली बात तो ये है कि ये अब नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। क्योंकि पहले ये बेलेबल था, कोई जनाब इसको परवाह नहीं होती थी, जनाब जो मर्जी आप करते रहे। अब ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, एक बात तो ये जहन में रख लें आप। दूसरा फिर ये है कि ये जो है बगैर वारंट के भी गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है। ठीक है जी। तीसरी बात यह है कि इसकी जो सजा है वो 2 साल से बढ़ाकर 5 साल तक इम्प्रिजनमेंट जो है वो रखी गई, यानी 5 साल तक आपको कैद की सजा हो सकती है। फिर इसमें जो मैं समझता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑब्वियसली क्योंकि एक लॉयर भी हूं, तो मैं नहीं समझता कि लोगों की जो आजादी है, लिबर्टी है, उसको इस तरह कदम लगाई जाए कि ऑब्वियसली ये तो बड़ा आसान होगा, किसी के ऊपर आपने जो है वो इल्जाम लगा दिया, उसको पकड़ के 6 महीने आप अंदर डाल दें जनाब, उसकी जमानत शरत नहीं हो रही क्योंकि अब ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है जनाब। लेकिन अब अदालत को ये पाबंद किया गया है कि इस तरह के मामला जो है उनका फैसला 6 महीने के अंदर हर सूरत में होगा, और अगर नहीं होगा तो मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को उसकी तहरीरी जो है वो वजूहात देनी पड़ेगी। और इसी तरीके से
मुतलका हाई कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस साहबान जो हैं, वो अलग से जजेस को तैनात करेंगे और दूसरा जो सपोर्टिंग स्टाफ है जो कि सिर्फ इस तरह के जो केसेस हैं उनको देखेंगे, ताकि इस कानून का कोई मिस यूज ना हो सके। कानून अभी बना है और उसके ऊपर शोर शराबा शुरू हो गया, ठीक है, उसके अंदर देखें, मैं बिल्कुल भी टोटली इसको डिनाई नहीं करता कि हमारे यहाँ तो रवाज रहा है कि कानून को मिस यूज भी किया जाता है। बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर जो तजीराती लॉज हैं उनका मिस यूज, उसके एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। लेकिन देखें, जो इस ऑर्डिनेंस के अंदर कहा गया है, और दूसरी जो है कि इसमें भी कर दी गई कि जनाब कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई तंजीम भी हो सकती है, ठीक है। ये उसकी जिसके ऊपर इतराज था कि इसके अंदर आपने शख्स की डेफिनेशन नहीं की, तो ये डेफिनेशन भी इस ऑर्डिनेंस में आ गई। फिर इसमें एक और जो चीज है, जो कंप्लेन है, जो कंप्लेन कर सकता है, वो जो मुतासरा फरीक है वो भी कर सकता है, उसका कोई एजेंट यानी अगर उसने कोई वकील किया है तो वो वकील भी कर सकता है, उसका गार्डियन यानी उसका माँ बाप जो है उनमें से कोई भी या कोई और भी लीगल गार्डियन है तो वो भी इस कंप्लेन को लॉन्च कर सकता है। अब देखें फंडामेंटल चीज क्या है जिसको हुकूमत ने भी कहा है कि आप तनकीद जरूर करें। महंगाई हुई है, महंगाई बिल्कुल हुई है, उसके ऊपर तनकीद आपका हक है, क्योंकि जर्नलिज्म यही है। अब जर्नलिस्ट होता कौन सा है, खबर क्या होती है, जर्नलिस्ट का रोल कितना होता है उस खबर में, ठीक है, कि क्या एक जर्नलिस्ट जो है वो अपनी ओपिनियन दे सकता है किसी मामले में, या किसी हद तक और किस हद तक वो अपनी ओपिनियन दे सकता है उसमें। ये सारी चीजें जो है वो इसमें मौजूद है कि आपने अगर तनकीद करनी है तो जरूर तनकीद करें जनाब, बिल्कुल आपका हक है। इमरान खान की कोई भी पॉलिसी, आई एम नॉट डिफेंडिंग इमरान खान, और ना ही किसी वजह से हम हुकूमत को डिफेंड करने के लिए यहां बैठते हैं। एज अ जर्नलिस्ट माई जॉब इज टू पॉइंट आउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, वेयर द पीपल फंडामेंटल राइट्स आर कंप्रोमाइज्ड, कहां उनको रोका गया है। ये तनकीद करना हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों का, हमारे दोस्तों का हक है। लेकिन फेक न्यूज और जातियात के ऊपर, कोई भी उसमें हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, हम उन तमाम की मजम्मत करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो नया प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के अंदर जो तरमीम की गई है, इसके अंदर भी ये इस चीज को जरूरी बनाया जाए कि इसमें फिर ये नहीं है कि जो आपके मुखालफीन हैं उनको तो आप पकड़ते चले जाएं, और आपके जो अपने लोग हैं वो फिर कानून को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी पड़ेगी। अब आज मैं एक खबर सुन रहा था कि जनाब मोहसिन बेग साहब ने जो एफआईए एहलकारों के ऊपर जो उन्होंने कोई रिवॉल्वर ताना हुआ था या कुछ भी था, उसका कोई लाइसेंस नहीं है। अब इस हमारे जर्नलिस्ट दोस्त को किसने ये इख्तियार दे दिया था कि वो सरेआम जो है वो अपना पिस्टल ना सिर्फ लहराए बल्कि उससे फायरिंग भी करे। अगर उसके कोई ग्रीवेंस थे तो अदालतों के रास्ते उसके लिए भी खुले थे। अब गए हैं ना उनकी मोहतरमा अहलिया जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई है ना कि जनाब ये केस जो है वो गलत लाच हुआ है इसको। यही वो तरीके हैं जिसको अपनाना चाहिए। जर्नलिस्ट जो होते हैं वो माशरे की आंख कान होते हैं, लेकिन अगर ये रोल मॉडल ही इस तरह का बिहेवियर करना शुरू कर दें सिर्फ इसलिए कि क्योंकि जनाब पावर कॉरिडोर्स में हमारे हाथ बड़े लंबे हैं, हमारी अप्रोच है, ये मोहसिन बेग साहब के बारे में ये तासुर आम दिया जाता है कि ये
इस बात का तासुर देते थे कि जनाब पावर पॉलिटिक्स में बहुत जनाब उनके लंबे हाथ हैं, और इसी वजह से ये इमरान खान के साथ भी थे कि जनाब, और इमरान खान साहब के जी इनको इस्टेब्लिशमेंट के करीब करने में मोहसिन बेग साहब का बड़ा नाम था जनाब। अब ये जो सो कॉल्ड हम ये चीजें करना शुरू कर देते हैं, और फिर जब कोई उसके बारे में पूछता है तो फिर हम उसके ऊपर ऐसी ऐसी जो है वो स्टोरियां चलाते हैं, जो कि किसी भी तरीके से जो जर्नलिज्म के मुसलमा असूल हैं उनके आगे से कोई भी हो। मैंने कहा, आप गरीदा फरूकी के खिलाफ, आसमा शराजी के खिलाफ ट्रेंड चलाए, आप किसी भी के खिलाफ ट्रेंड चलाए, ये जर्नलिज्म इसकी इजाजत नहीं देता, फेक न्यूज की इजाजत नहीं देता। इसलिए मैं समझता हूं कि हम जर्नलिस्ट जो दोस्त हैं उनके ऊपर भारी जिम्मेदारी ये होती है कि हम तारीख के सही सिमत के पे खड़े हों, जो सही है उसको सही कहे और जो गलत है उसको गलत कहे। मसलन बहुत सारे हमारे बड़े चैनल्स जो हैं उन्होंने हेडलाइंस क्या है, उन्होंने बीफ्स क्या दिए, हुकूमत पर तनकीद करने पर मोहसिन बेग को गिरफ्तार कर लिया गया। ये अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें तो आपको ये बड़े बड़े हेडलाइंस जो हैं वो मिलेंगे कि हुकूमत पर तनकीद करने पर मोहसिन बेग को गिरफ्तार कर लिया गया। भाई ये क्यों ऐसा करते हैं आप लोग? मोहसिन बेग की गिरफ्तारी हुकूमत पर तनकीद की वजह से नहीं हुई, उसकी गिरफ्तारी घटिया और नाजेबा गुफ्तगू करने के ऊपर, जिसके ऊपर कंप्लेन आई उसके ऊपर हुई। और फिर दूसरी जो उसके ऊपर गिरफ्तारी है वो जो उन्होंने असले से फायरिंग की है, और फिर जो उनके बेटे ने, उनके मुलाजमीन ने जिस तरीके से कार्य सरकार में मुदाखलत की है, ये उसकी गिरफ्तारी है। ये हमारे जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, जो हमारे बड़े बड़े प्रेस क्लब हैं, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। हम सिर्फ ये बात करते हैं क्योंकि ये जनाब, अब हम, ये एक जो बंदा मेरे सामने है, ये क्योंकि जर्नलिस्ट का लबादा इसने उड़ा हुआ है तो हम इसके साथ खड़े हैं। हम सही के साथ क्यों खड़े नहीं होते? जो कि जर्नलिज्म हमें सिखाता है कि हमने गलत काम की मुखालफत करनी है, हमने तारीख की सही सिमत में खड़े होना है, ये हम क्यों नहीं सीखते? ये कहां का असूल है, कहां का दस्तूर है कि जनाब हम जो है वो इस तरह से करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। ठीक है, अब इस ऑर्डिनेंस के अंदर जो भी नई चीजें आई हैं, एक तो कानूनी तरीकाकार ये है कि अगर हमारी जो बड़ी तंजीमें हैं जर्नलिस्ट की, वो अगर इसको चाहे तो इसको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इसको आप चैलेंज करें, और फिर देखते हैं कि वहां पे क्या होता है। लेकिन बात यह है कि फेक न्यूज को बेस बना के किसी की जाती जिंदगी की, किसी की, ए हो, बी हो, सी हो, कि जाती जिंदगी के ऊपर रकीक, गलीज, घटिया हमला करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हमारे पॉलिटिशियन इंक्लूडिंग इमरान खान, जावेद लतीफ, फरहाना सनाउल्लाह, फासल वाडा, इस जब ये लोग इस तरह की बात करते हैं तो क्या ये हमारे जर्नलिस्ट, वो एंकर भाई जो दोस्त वहां बैठे हुए हैं, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या जर्नलिज्म उनके ऊपर ये पाबंदी नहीं लगाता कि आपने उनको रोकना है, यू हैव टू इंटरफेयर? लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपने प्रोग्राम की रेटिंग के लिए हम जो जर्नलिज्म के मुसलमान असूल है उनसे हट चुके। मैंने आपको चैलेंज किया है कि जिस तरह की सहाफत आप पाकिस्तान में कर रहे हैं, उस तरह की सहाफत का एक हिस्सा भी यहां आके यूके में करके दिखाए, और उनकी मिसालें मैंने दे दी आपको
कि किस तरीके से लोगों को फिर माफिया मांगनी पड़ी, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करनी पड़ी कि जी हमसे गलतियां हो गई। ये वही राम है जिसने फिर जुल्फी बहारी से माफी मांगी है यहाँ पे और सेटलमेंट किया है। बड़े बड़े चैनल्स हैं जो यहाँ बंद हो गए, जिनके ऑपरेशन नए नामों से साथ करना पड़े, उनको शुरू करना पड़ा, और फिर वहां पे हैवी जुर्माने भी पे करने पड़े। अब ये वो सारी चीजें हैं। और क्या यहाँ पे शोर तो नहीं मचता कि जनाब आजादी सहाफत पर जो है वो जनाब कदगन लग गई है, हमारी जुबान बंदी की जा रही है, ताला मारी जुबानों को मारा नहीं भाई। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद की जा रही है कि अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो आपने अपना जर्नलिज्म, आपने अपनी सहाफत जिम्मेदारी से करनी है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रोग्राम के तवज्जुह से सिर्फ यही कहना है कि ये जो फीका एक्ट, यानी जिसको मैंने प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जो है, इसके अंदर जो तब्दीलियां गई गई है इस तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए, और जिसको अब लागू भी कर दिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि इसको लोगों को विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाए। और मैं ये समझता हूं कि हमारे मीडिया हाउसेस जो है, हमारे जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट दोस्त जो हैं, वो भी अब खबर को सामने रखकर उसके मयार को पहले परखेंगे कि ये फेक न्यूज तो नहीं है, और फिर उसके ऊपर जो है वो प्रोग्राम करें। हमारे दुश्मन हमारे अंदर बाहर, वो तो हमारा तमाशा देखने के लिए मौजूद है। हाइब्रिड वार का हम हिस्सा है। किस तरीके से हमारे कंट्री के खिलाफ जो है वो फेक न्यूज लाई जाती हैं, फेक प्लान जो है, फेक प्लाट जो है वो सामने लाए जाते हैं। और अगर हम भी उसी का हिस्सा बन जाए तो फिर कौन सा जर्नलिज्म और कौन से जर्नलिस्ट है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग जो है जर्नलिस्ट अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, और सिर्फ ये शोर करने की जरूरत नहीं है कि जनाब ये सहाफत पर पाबंदी है, आजादी राय पर पाबंदी है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आपको आजादी राय की जो है वो आजादी देता है, वही कॉन्स्टिट्यूशन उसी के आर्टिकल जो है वो मुझको भी मेरा राइट देते हैं कि किसी शख्स को ये हक हासिल नहीं है कि वो मेरी इज्जत आबरू नमूस के साथ खेल सके। आपको अपने राइट तो कॉन्स्टिट्यूशन के याद आ जाते हैं, लेकिन जो मेरे राइट है उसका कौन जिम्मेदार, उसकी प्रोटेक्शन कौन करेगा। अनफॉर्चुनेटली अब ये ट्रेंड पाकिस्तान में चल गया है कि वकाला वकाला के साथ खड़े होते हैं, जजेस जजेस के साथ खड़े होते हैं, डॉक्टर डॉक्टर्स के साथ खड़े होते हैं, जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट के साथ खड़े होते हैं। ऐसे माशरे तनाजुली का शिकार हो जाते हैं जहां आप तारीख की सही सिमत में खड़े नहीं होंगे। सिर्फ जाती मफादात की खातर आप रॉन्ग साइड पे खड़े होंगे, वो माशरे कभी भी तरक्की नहीं करेंगे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आज एक और जो ऑर्डिनेंस आया जो पॉलिटिकल एक्ट के ऊपर है, जिसमें ये कहा गया है कि तमाम जो मेंबरान हैं नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली और हुकूमत के वज़ारा मशीर, वो भी इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ले सकते हैं। तो इसके ऊपर अगला प्रोग्राम जो है वो मैं करूंगा, और उसको भी मैं कंपेयर करूंगा कि यहाँ यूके में क्या सूरत हाल है, कि यहाँ पे ऐसे कोई भी ज़ाब्ता इखलाक नहीं है कि जनाब, हाँ वो आता है कि जिसपे मेल प्रैक्टिसेस ना हो, लेकिन कंपेन करने में अभी यहाँ पे हमारे बर्मिंघम में कहता हूँ यहाँ पे एक बाई इलेक्शन हो रहा है लेबर के एक जो मेंबर पार्लियामेंट है उसके वफात के बाद, तो वहां पे सारे काउंसलर भी कंपेन कर रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट भी कंपेन कर रहे हैं, सारे कंपेन कर रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो हमारे आउटडेटेड रूल्स ज़ाब्ता अखलाक हैं, उनको कौन सही करेगा, इसके ऊपर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में बात होगी। अगले संडे तक मुझे अपने दोस्त अपने भाई जाहिद चौधरी को इजाजत दीजिएगा। अपना अपने गिरदोनवा के लोग का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।